क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट हो और अकाउंटेंसी का पेपर सर पे खड़ा है। बहुत टेंशन हो रही है, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या रिवाइज करे क्या ना करे। लास्ट वन डे रह गया है। व्हाट आर द टॉप 10 टिप्स दैट यू नीड? हाय एवरीवन, माय नेम इज विदुषी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. I am a first year BCom honors student at SRCC. I scored a 99 out of 100 in my class 12 board exams in accounts. And trust me, it was not luck, it was smart preparation. आज के वीडियो में we are going to discuss 10 ऐसे points which are your ultimate revision points for your board exams. So stay till the end of the video because 7th and 8th point is the most important point and the point where a lot of students lose their marks. If you are new to this channel, do not forget to subscribe to the channel. And yes, let's just jump right in. 10 points that can help you score 90 plus in your accounts board exam. All right. So the first point is that format is everything. Accountancy is 50% knowledge and 50% presentation. अगर तुम्हारा format गलत है तो marks cut होंगे. Even if your calculation was correct, you need proper headings, you need proper columns, you need proper date, you need narration wherever required, you need balance in the accounts प्रॉपरली जहां पे भी अकाउंट्स को क्लोज करना है. ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो उसका फॉर्मेट अलग होता है, बैलेंस शीट बना रहे हो तो उसका फॉर्मेट अलग होगा, पार्टनरशिप के अकाउंट्स बना रहे हो तो प्रॉपर कैपिटल अकाउंट्स बनाओ. अ वेरी अंडररेटेड थिंग इज हम कोई भी अकाउंट बनाए तो उसके ऊपर डेबिट एंड क्रेडिट लिख के आओ, डेट का कॉलम बना के आओ, पेंसिल से लाइंस खींच के आओ. दिस लीव्स अ वेरी वेरी गुड mark on the examiner जो आपका पेपर चेक कर रहा है. And in that sense your paper in the first eye becomes pleasing to the eye, becomes neat, and जिसके कारण your score can go up. Second is a very very small mistake that a lot of people do, that is ignoring the word per annum. Now whenever you get to calculate an interest, students will most of the times look at the rate and go on to calculate. For example, तुमने देखा 10% लिखा है, but 10% के साथ क्या per annum लिखा है? Now per annum लिखा या ना लिखा will have a very very big thing to take care of. अगर per annum लिखा है that it means कि हम टाइम को कंसिडर करके चलेंगे, बट अगर पर एनम नहीं लिखा है तो हम टाइम फ्रेम को कंसिडर नहीं करते. सो वी नो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम इज व्हेट यू गेट इंटरेस्ट. तो वहां पे जो टाइम है वो लेना है या नहीं लेना है इज अ मेजर डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द वर्ड पर एनम. तो अगर इंटरेस्ट गलत हो गया तो या तुम्हारी एंट्रीज गलत हो जाएंगी, या तुम्हारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन गलत हो जाएगा, फिर तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी गलत हो जाएगा. तो एक अमाउंट कैन अफेक्ट योर 3 to 4 कैलकुलेशंस इन द सेम क्वेश्चन. इसलिए एक ऐसी बहुत छोटी सी चीज विच यू नीड टू टेक केयर इन जब तुम पेपर कर रहे हो. इवन इन द रीडिंग टाइम जैसी पेपर आता है, पहली चीज देखो मुझे जो क्वेश्चन आया है क्या उसमें पर एनम है या नहीं है. सो दिस इज अ वेरी अंडररेटेड टिप विच कैन हेल्प यू फॉर योर अकाउंट्स. The third tip is dates मत भूलना. Now what I say by dates is what date is mentioned in the question, date when the business is starting, date when the business is ending, that is whether we are following a calendar year or we are following a financial year. अगर तुमने सारा क्वेश्चन कैलेंडर ईयर से कर दिया और करना फाइनेंशियल ईयर से था, या फाइनेंशियल ईयर से कर दिया और करना कैलेंडर ईयर से था, तो टाइम भी गया, एफर्ट भी गया और मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे. सो this is something which is very basic but another common mistake which a lot of students do. Then in case of admission, retirement, interest on drawings, partnership adjustments, even in the case of share capital, you need to take care of the date. Very 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 important, very important factor to look into. Next is tip number 4. Next is formulas and working notes are non-negotiable. Never write a final answer in your accountancy exam without a working note, because boards में step marking होती है, journal entry के marks होते हैं, कभी-कभी accounts के marks होते हैं, कभी-कभी calculations के marks होते हैं. So do that calculation, show that working note
शो व्हाट लेड यू टू दैट आंसर, डू नॉट यूज शॉर्टकट्स. ठीक है, गुडविल है, उसका फॉर्मूला है कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, उसको लिख के आओ. ठीक है, कोई अजम्पशन लेके चल रहे हैं, उस अजम्पशन को लिख के आओ. कोई रूल है इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, उस रूल को लिख के आओ. योर पेपर शुड लुक लाइक कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता. जब तुम इस माइंडसेट से चलोगे ना कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आता और मुझे ही एग्जामिनर को सब कुछ बताना है, दैट इज वेयर योर पेपर विल बी अ वेरी वेरी गुड एग्जाम. ठीक है, वर्किंग नोट क्लियरली बनाओ, हेडिंग्स लिखो कि ये मेरा वर्किंग नोट है, उसके नीचे काम करना शुरू करो. इवन इफ फाइनल आंसर गलत हो जाए, तुम्हें स्टेप मार्किंग में ना वर्किंग नोट के मार्क्स मिल जाएंगे. Next, tip number 5 is do not ignore theory. Now, why I say do not ignore theory is because MCQs में 3-4 questions come directly from the theory. अब theory में आ क्या सकता है? theory में वो कोई section पूछ सकता है, theory में वो कोई definition पूछ सकता है, theory में वो कोई act पूछ सकता है. theory में they can ask a difference between something. You can capital profit क्या है, revenue profit क्या है, shares क्या है, debentures क्या है. थ्योरी स्कोरिंग है बिकॉज यू गेट थ्योरी ओनली इन एमसीक्यूज. तो वो एमसीक्यूज जो 3-4 नंबर आपको फ्री के मिल सकते हैं थ्योरी में, डू नॉट लूज योर गेम ऑन इट. थ्योरी करके जाओ बिकॉज दैट विल गिव यू एन एज इन योर एमसीक्यूज टू सॉल्व. Tip number 6 is cash flow statements. For cash flow statements is very very important to keep your concept clear. तुम्हें difference between operating, investing and financing activities clear होना चाहिए. नॉन कैश आइटम्स को कैसे एडजस्ट करना है, नॉन ऑपरेटिंग को कैसे एडजस्ट करना है, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस कहाँ जाएगा, ये कुछ बातें शुड बी क्लियर इन योर माइंड. चेंज इन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का लॉजिक क्लियर होना चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैश फ्लो में मार्क्स इजीली आ सकते हैं. इफ यू नॉट क्लियर विद इट, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी शेयरिंग यू द लिंक टू गेट एक्सेस टू माय ओन नोट्स which I use for my preparation. They have certain points that if remembered correctly, basically your last minute revision points, जहां से you can take an help for the cash flow की revision कि क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा. Abbreviations बना के उसमें लिखा हुआ है. So stay till the end of the video for your access to it. Tip number 7 is share capital. A lot of students fear share capital का question कि अरे हमारे तो share capital में marks ही नहीं आने वाले. But honestly share capital में mistakes होती हैं, but if done correctly तो full marks भी आ सकते हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एंट्रीज को याद रखो प्रॉपरली, चेक कराओ केयरफुली कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, फोरफीट कितने हो रहे हैं, रीइश्यू कितने हो रहे हैं, कौन से वाले हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कुछ छोटी छोटी बातें एंड योर क्वेश्चन विल बी राइट. रीइश्यू पे लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, फोरफीटेड का ट्रीटमेंट सही से करो, कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए. जल्दी में कभी कभी एंट्रीज गलत हो जाती है, यू विल मिस आउट ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी हिडन पॉइंट इन द क्वेश्चन. कभी कभी हिडन एडजस्टमेंट होती है, तो वहां पे यू हैव टू बी वेरी वेरी डेडिकेटेड व्हेन यू आर सॉल्विंग शेयर कैपिटल का क्वेश्चन, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन उसको मिस ना करो. राइट, सो शेयर कैपिटल में दिस इज वन थिंग दैट यू गाइज नीड टू सी टू. दूसरा, हाउ यू कैन अवॉइड मिस्टेक इसमें इज व्हेन यू गेट योर पेपर इन द रीडिंग टाइम, वहीं पे व्हेन यू रीड योर शेयर कैपिटल का क्वेश्चन, अंडरलाइन वेरी लाइटली कि क्या पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला है. ओके कि रीइश्यू हो रहे हैं, कॉल्ड अप नहीं थे, इतना ने डिफॉल्ट कर दिया, कॉल्स इन अरियर हो गया, जो भी हो रहा है ना, जस्ट अंडरलाइन इट सो दैट यू डोंट मिस आउट. दूसरा, कभी कभी ना क्वेश्चन में साइमल्टेनियसली बहुत सारी चीजें दी होती है, लाइक प्रिपेयर द एंट्रीज एंड पास द अकाउंट एंड प्रिपेयर द अकाउंट एंड पास द एंट्रीज. अब इस केस में क्या है, जल्दी जल्दी में प्रिपेयर द अकाउंट हो जाएगा, पास द एंट्रीज भूल जाओगे. तो व्हेन यू आर रीडिंग द पेपर, जस्ट पुट अ 1 and a 2 इन द क्वेश्चन पेपर ओनली, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो चीजें करनी है. दिस विल सेव यू फ्रॉम रॉन्ग क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन वाली चीज, या भाई मुझे आता था और मैंने देखा नहीं वाली गलती. तो दिस कैन हेल्प यू विद इट. टिप नंबर 8 इज कि डिबेंचर्स का क्वेश्चन आ रहे तो उसमें लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना मत भूलना. दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल फॉरगेट टू डू. डिबेंचर्स चैप्टर्स में सारी एंट्री सही होती है बिकॉज इट इज सिमिलर टू शेयर कैपिटल और इजी है, बट वन एंट्री विच इज डिफरेंट एंड विच गेट्स अ लॉट ऑफ पीपल लूज देयर मार्क्स इज कि लॉस को राइट ऑफ नहीं करते. तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग. Coming to tip number 9. Tip number 9 is सब हेड्स एंड मेजर हेड्स को अच्छे से याद कर लो. 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से फ्री के नंबर देता है. बहुत सारे ईयर्स से दिस पैटर्न इज रिपीटेड.
Even if it is not a direct question, कुछ ना कुछ question will be related to major heads, sub heads. अगर यहाँ नहीं पूछेंगे MCQs में पूछ लेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर. So just remember them nicely. एक बैलेंस शीट याद रखने हैं, 10 आइटम्स याद रखनी है, एंड यहाँ पे इजिली मार्क्स मिल सकते हैं. नॉन करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स में क्या जाएगा, करंट लाइबिलिटीज में क्या जाएगा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. अगेन इसको याद करने का एक बहुत इजी वे इज अवेलेबल इन माय नोट्स. सो अगेन स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो ताकि तुम्हें पता लगे हाउ कैन यू एक्सेस दोस नोट्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टिप नंबर 10 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि कैलकुलेशंस को हमेशा हमेशा डबल चेक करो. अकाउंट्स में सबसे पेनफुल चीज क्या होती है ना, कि हमें सारा क्वेश्चन आता था पर हमने कैलकुलेशन गलत कर दी, राइट? तो लास्ट के 10 से 20 मिनट्स कीप ओनली फॉर टोटल्स, कीप ओनली फॉर बैलेंसिंग, कीप ओनली फॉर सीइंग कि क्या मैंने फॉरवर्ड करी थी जो फिगर वो सही करी है, प्लस माइनस का साइन सही लगाया है. रफ कॉलम्स में कैलकुलेशंस करो, पेपर के साइड पे पेंसिल से दोबारा कैलकुलेशन चेक करो, सॉल्व करो पूरा अगेन फ्रॉम स्क्रैच. तभी तुम इंश्योर करोगे कि तुम्हारी कैलकुलेशन सही है. कैलकुलेशन मिस्टेक अगर अवॉइड कर दी ना, देन इट इज द हाफ विक्ट्री फॉर यू. दीज 10 टिप्स इफ फॉलोड, अकाउंट का पेपर तुम्हारा कुछ हद तक सेफ जोन में चला जाएगा. Or if you guys want a last minute smart revision, for that I'm sharing the exact revision notes which I personally use and that got me a 99 out of 100 in my boards. These include important questions, these include important points, these include theory, these include formulas. So if any of you want access to these notes, you can scan the QR code right here and स्कैन करके एक्सेस मिल जाएगा टू दोस नोट्स. बोर्ड स्मार्टली दो, सिर्फ मेहनत से नहीं. रिमेंबर योर प्रेजेंटेशन, योर प्रिसिशन, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड विल गेट यू 95 प्लस इन योर बोर्ड्स. एंड ऑनेस्टली बहुत ज्यादा एग्जाइटी हो रही होगी कि क्या पेपर आएगा, मैंने पढ़ लिया है, मुझसे तो याद नहीं हो रहा, मुझसे स्पीड नहीं हो रही है, अकाउंट्स का पेपर मुश्किल आ गया तो क्या करेंगे, आसान आ गया तो क्या करेंगे. तो डू नॉट वरी, योर वर्क इज टू study, your work is to give your best in those 3 hours and leave the result onto God, leave the result onto universe. जितने नंबर लिखे हैं उतने ही मिलेंगे. तो do not worry a lot, keep your mindset right and utilize the reading time very well. पर एनम, कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, फोरफिट कब हो रहा है, रीइशू कब हो रहा है, ऐसी चीजों को रीडिंग टाइम में ही अंडरलाइन कर लो. एंड आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद द लास्ट, ताकि तुम पहले जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको कर पाओ. इफ पॉसिबल कुछ एमसीक्यूज रीडिंग सेक्शन वाले टाइम में सॉल्व कर सकते हो बिकॉज अकाउंट्स का पेपर लंबा होता है. बट इतना मत करना कि एग्जामिनर तुम्हें आके पकड़ने लग जाए कि भाई तुम पेपर पे लिख क्यों रहे हो. Of course, do it in your minds. So yeah, do not panic in the exam hall. Keep your mindset right. Follow these kuch tips and keep your calculations right, and you will be good to go. And I'll see you in the next video. Until then, do not forget to like, share, and subscribe. Bye bye.